احترام کرنا اور اذان کو خاموشی کے ساتھ سننا، علماء نے یہاں بہت ساری اذان کے فضائل کے اندر باتیں لکھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اذان کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، ایک ایک کلمے پر، اذان کے ایک ایک کلمے کے جواب پر میرا رب 1,00,000 نیکی عطا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اذان سنتا ہے، اذان کو سننے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اس وقت جو دعا اللہ کے حضور کی جاتی ہے، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور علماء نے یہاں ایک بات اور لکھی کہ جو بندہ شاعر اسلام اذان کا احترام نہیں کرتا، اذان ہو رہی ہے، اب اس باتوں کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے جو ہے کام کاج کے اندر لگا ہوا ہے، اذان کو صحیح معنوں میں سنتا نہیں ہے، اس کا جواب نہیں دیتا، علماء نے کیا لکھا کہ اس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ اذان کو صحیح طریقے سے سنتا ہے، اگر بندہ کام کر رہا ہے 2 منٹ کے لیے رک جائے، اذان کا صحیح طریقے سے اذان کو سنے اور اللہ کا حکم سمجھے اور اللہ کے عظیم حکم کا بلاوا سمجھتے ہوئے اذان کے کلمات کا صحیح لفظوں میں جواب دے، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اذان کا احترام کرتا ہے اور صحیح انداز میں الفاظ کا جواب دیتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ مرے گا، موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دے گا۔ اور جس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی نے اپنے دور کے اندر طائف سے لے کر مکہ تک ایک جو ہے نہر زبیدہ کھدوائی تھی اور پتھروں کو چیر چیر کر بڑی محنت مشقت کے بعد یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اور جب زبیدہ کا انتقال ہوا، اپنی سہیلی کو خواب کے اندر ملی اور اس سہیلی نے پوچھا، زبیدہ تو نے دنیا کے اندر بہت نیکی کا بڑا کام کیا تھا، حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے تو چلی گئی تھی، یہ تمہارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ تھا، کیا بنا؟ اللہ نے نہر زبیدہ کی وجہ سے تیری بخشش کر دی۔ اس پر زبیدہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ کون سی نیکی لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا اللہ دنیا کے اندر یہ بہت بڑا کام کر کے آئی ہوں۔ تو جو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زبیدہ بیت المال کا پیسہ تھا، لوگوں کا پیسہ تھا، لوگوں کو فلاحی کام پر تو نے لگا دیا، اس میں تیرا ذاتی کوئی جو ہے ذاتی تیرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس پر زبیدہ جو ہے پریشان ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زبیدہ ہمیں تمہاری ایک نیکی پسند آئی، ایک ادا پسند آئی، جس ادا کی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ وہ ادا کیا تھی کہ بہار کے موسم کے اندر تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ کے اندر ٹہل رہی تھی، ادھر اللہ کے منادی مؤذن نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے سر کے اوپر اس وقت کپڑا نہیں تھا، جب تو نے اذان کی آواز سنی تو رک گئی اور اذان کے احترام میں تو نے اپنے سر کے اوپر کپڑا لے لیا۔ ہمیں تمہارا شاعر اسلام اذان کا احترام کرنا اتنا پسند آیا کہ ہم تیری بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ شاعر اسلام ہے، اسلام کا شاعر اسلام کے اندر جو کچھ بھی ہے، اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، اور اسی انداز میں حج ہے، اور جتنے بھی شاعر اسلام کے اندر باتیں آتی ہے، جو بھی ان کا ادب و احترام کرے گا، اللہ دنیا آخرت کی کامیابی اس کے مقدر کے اندر لکھ دے گا۔ پنجگانہ نماز کے لیے مسلمان مسجد کے اندر آتا ہے، مسجد کے اندر نماز کو ادا کرتا ہے، اور یہ وہی نماز جس کے متعلق آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور پنجگانہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو بندہ 5 جگانہ نماز پڑھتا ہے، میرا رب اس کو 5 انعام دیتا ہے۔
पहला इनाम उसके रिज़्क़ की तंगी को मेरा रब ख़त्म कर देता है। दूसरे नंबर पर मेरा रब अज़ाब कब्र से उस बंदे को बचा लेता है। तीसरे नंबर पर पुलिस राज से आसानी के साथ वो गुजर जाता है। चौथे नंबर पर नामा अमाल नमाजी बंदे के दाएं हाथ में दिया जाएगा और कल क़यामत वाले दिन नमाजी बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। और बेनमाजी के लिए कितनी इबरत है, कितनी जो है सज़ाएँ हैं। बेनमाजी जब मरता है, जब कब्र के अंदर बेनमाजी को रखा जाता है और उस वक़्त हदीस मुबारका के अंदर आता है बेनमाजी पर मेरा रब एक बहुत बड़ा अज़दहा सांप मुसल्लत कर देता है। वो बंदे को दबोचता है, मुर्दा 70 हाथ ज़मीन के अंदर दनस जाता है, वो डंग मारता है, अजियत देता है और कहता है कि मेरे रब ने मुझे तेरे ऊपर मुसल्लत किया, फजर की नमाज छोड़ी, जोहर तक तुझे डंग मारता रहूँगा और फजर की छोड़ी जोहर तक सज़ा देता रहूँगा और जो है जोहर की छोड़ी असर तक, असर की छोड़ी मगरब तक, मगरब की छोड़ी ईशा तक, ईशा की छोड़ी फजर तक तुझे जो है अजियत और अजाब देता रहूँगा। ये तो अजाब कब्र है। और कल क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो नमाज है। अगर नमाज अच्छी निकल आई बाकी अमल भी अच्छे निकल आएंगे, अगर नमाज अच्छी ना निकली बाकी अमल भी अच्छे नहीं निकलेंगे। हम दुनिया के अंदर रहते हुए हमें जो है इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। अल्लाह ने ईमान वालों को, मुसलमानों को तौफीक दी, हिम्मत दी। बूढ़े आदमी है, बढ़ापे की हालत है, कमज़ोरी है, सुबह सादक का वक़्त है, सर्दी भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, वो ईमान की हालत के अंदर ईमान वाली ताकत के साथ मुसलमान पंजगाना नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। जो इनके औकात में नमाज़ों का एहतमाम करते हैं अल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता करता है, आखिरत के अंदर भी उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वरना हम दुनिया के अंदर रहते हुए हमारा दुनिया का छोटा सा नुकसान हो जाए हम कहते हैं बड़ा नुकसान हो गया। हम लोगों को बताते फिरते हैं, दोस्तों को बताते फिरते हैं कि हमारे बच्चे ने घर के अंदर बर्तन को तोड़ दिया, हमारे बच्चे ने फला नुकसान कर दिया। अरे भाई ये दुनिया के नुकसान क्या है? ये नुकसान आर्जी हैं, ये दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, ये दुनिया की ज़िंदगी भी आर्जी है, ये दुनिया की शोहरत भी आर्जी है, ये दुनिया की वजारत भी आर्जी है, ये दुनिया की बादशाहत भी आर्जी है, ये दुनिया की तंदुरुस्ती भी आर्जी है, ये दुनिया की जवानी भी आर्जी है, ये दुनिया का हुस्न जमाल भी आर्जी है। हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी और नाकामी जन्नत और दोज़ख है, जन्नत और दोज़ख है। इंसान के लिए, मुसलमान के लिए कामयाबी और नाकामी का मेयार जन्नत और दोज़ख है। हमने समझ लिया दुनिया का छोटा सा नुकसान हो गया हम परेशान हो जाते हैं। अरे भाई जिस बंदे ने एक नमाज को ज़ाया कर दिया उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उलमा फरमाते हैं जिस बंदे ने एक नमाज को छोड़ दिया वो ऐसे है जैसे एक आदमी का घर बार तबाह हो जाए, बीवी बच्चे उसके जो है मर जाएं, कारोबार ठप हो जाए, वो तने तनहा बैठा ज़मीन पर नदामत के आंसू बहा रहा हो और बता रहा हो कि लोगों मैं लुट गया, घर बार भी ख़त्म हो गया, बीवी बच्चे भी ख़त्म हो गए और जो है सब कुछ ख़त्म हो गया, तने तनहा बैठा नदामत के आंसू बहा रहा हूँ। उलमा फरमाते हैं ये नुकसान छोटा नुकसान है, एक नमाज का छोड़ देना इससे कई गुना बड़ा नुकसान है। जो असल नुकसान है उसको के मुतल्लक उम्मत के लोग सोचते नहीं हैं। जो आर्जी नुकसान है उसको हम बड़ा नुकसान समझ लेते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम ज़िंदगी को देखते हैं, महबूब की ज़िंदगी के जब आखिरी अय्याम थे, महबूब को बार बार गशी हो रही थी। महबूब को जब होश आता दो आदमियों के सहारे महबूब मस्जिद के अंदर आते, नमाज पढ़ते और महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी वसीयत में उम्मत के नाम एक पैगाम दिया है। और वो पैगाम क्या है? फरमाया अस्सला, मेरी उम्मत के लोगों अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत के लोगों नमाज ना छोड़ना।
नमाज ना छोड़ना। वो पैगंबर जो उम्मत के लिए इतना रोए, इतना तड़पे कि कोई नबी और रसूल इतना ना रोया। वो महबूब गारों के अंदर जिस महबूब ने उम्मत के लिए आंसू बहाए, उम्मत की मगफरत के लिए दुआएं की, आज उम्मत के लोग उस अपने महबूब के महबूब की आंखों की ठंडक नमाज को कैसे छोड़ सकते हैं? महबूब की ज़िंदगी की आखिरी वसीयत नमाज को कैसे छोड़ सकते हैं? फरमाया मेरी उम्मत के लोगों नमाज ना छोड़ना। और दूसरी वसीयत फरमाई कि मेरी उम्मत के गरीब लोगों का खास ख्याल रखना। आज उम्मत मुसलमान हम सब लोग कितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है, मोहब्बत के साथ महबूब के एक एक हुक्म को हमें मानना पड़ेगा, एक एक सुन्नत पर अमल पैरा होना पड़ेगा। ये पंजगाना नमाज पंजगाना नमाज जो है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। अगर कोई बीमार है उसके लिए भी गुंजाइश नहीं, बैठकर पढ़ सकता है बैठकर पढ़े, अगर बैठकर नहीं पढ़ सकता लेटकर पढ़े, इशारे के साथ पढ़े। नमाज हर हालत में फ़र्ज़ है। और अगर इसके अंदर गुंजाइश आती तो बहुत सारे मौक़े ऐसे आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान के अंदर जिस वक़्त तीरों की बौछार थी और सामने लाशें पड़े हुए थे और बड़ा मुश्किल तरीन वक़्त था, उस वक़्त भी नमाज पढ़ के उम्मत के लोगों को पैगाम दिया कि उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, नमाज को किसी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। ये मेरे नाना के आंखों की ठंडक नमाज है, इसको हर हाल में पढ़ना ज़रूरी है। फिर जो बंदा नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उसके लिए बड़े बड़े इनामात रखे हैं। और जो नमाज़ों को छोड़ता है उसके लिए बहुत सख्त अजाब है, बहुत सख्त अजाब है, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी फरमाते हैं, एक बेनमाजी की नहौसत जहाँ बेनमाजी रहता है उसके चारों तरफ 40-40 घरों तक उसकी नहौसत फैलती है। आज सारे लोग परेशान हैं कि घरों के अंदर बेबरकती है, नहौसत है, कारोबार के अंदर बेबरकती है, इतना घर के अंदर कमा कर लेकर आते हैं, पता नहीं चलता किधर चला गया। अरे भाई, उसकी बुनियादी वजह यह है हमने नमाज़ों को छोड़ दिया, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को छोड़ दिया, हमने मनचाही ज़िंदगी को अपना लिया, जिसकी वजह से आज जो है सब कुछ होने के बावजूद सारे फैमिली के मेंबर कमाते हैं, फिर भी जो है हमारे घर के अंदर जो है खर्चा पूरा नहीं हो रहा। पहले लोग भी हुआ करते थे जो सुबह सवेरे उठा करते थे, तहज्जुद के वक़्त उठा करते थे, तहज्जुद पढ़ते, फजर की नमाज पढ़ते, और मसाजिद कच्ची हुआ करती थी और वहाँ चरागों के अंदर तेल डालकर जो उनको जलाया जाता था, वहाँ उस सामने बैठकर लोग कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर कितना एहसान किया। आज से 50 साल पहले की लोगों की ज़िंदगी को देखो, बल्कि बादशाहों की ज़िंदगी को देखो, उनके पास वो बुनियादी सहूलतें मैसर उनको नहीं थी जो आज हमारे गरीब लोगों के पास भी मौजूद है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं, उसके बावजूद भी अगर हम दीन इस्लाम पर नहीं चलते तो हमारे से बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। हमारे लिए फिर बहुत बड़ी नाकामी है, हमारी बदबख्ती के लिए यही काफ़ी है। आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को पढ़ा लिखा भी समझते हैं और जो है कारोबारी भी समझते हैं, बड़े बड़े डिप्लोमा होल्डर हैं, अपने आप को कामयाब समझते हैं और नमाज़ों के करीब नहीं आते। उनको दुनिया जहान की हर चीज़ आती है, लेकिन अगर पढ़ना नहीं आता, कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, तफसीर नहीं पढ़नी आते, फ़िक़्ह के मसाइल का उसको पता नहीं है, और दुनिया के अंदर रहते हुए ज़बान का गलती इस्तेमाल हो रहा है, रिश्वत आम है और जो है मिलावट आम है, और हाथ और ज़बान के साथ जुल्म व सितम हो रहा है, इंसानियत का, मुसलमानों का कत्ल आम है, और मुआशरे के अंदर कौन सा गुनाह है जो हमसे नहीं हो रहा। और आज जो है हम बचे हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के महबूब की दुआओं का सदका है। आप अनगन्ना मुआशरे के अंदर शराब की वजह से, ज़िना की वजह से, बेहयाई की वजह से, और जो है अरकान इस्लाम से
دوری کی وجہ سے اللہ کی اتنی ناراضگی ہے کہ ہماری شکلیں بگڑ جاتی۔ یہ تو محبوب کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عذابوں سے بچایا ہوا ہے۔ وگرنہ معاشرے کے اندر کون سا گناہ ہے، کون سا کام ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہم سے نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے حضور دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کتنے گناہ کر لیے، کیا ساری زندگی تو نے گناہوں کے اندر گزار دی؟ میرے بندے گناہوں سے تھک گیا ہے، بڑے گناہ کر لیے، کیا اتنے گناہ کر لیے؟ کیا تو نے سمندر کے جاگ کے برابر گناہ کر لیے؟ کیا زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے میرے بندے تو نے بھر دیا؟ میرے بندے میرے در پہ آ جا، ندامت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے اور پکی اور سچی توبہ کر لے۔ تیری آنکھ سے نکلنے والا ندامت کے ساتھ ایک آنسو تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، ایک وہ بت پرست، ایک وہ مشرک جو ساری رات یا صنم کہتا رہا، صبح کی جب ٹھنڈی ہوا چلی اس کی زبان سے بے ساختہ اون کی وجہ سے یا سمد نکل آیا۔ آگے سے اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ تو مشرک ہے، یہ تو کافر ہے اور بت پرست ہے اور غلطی کے ساتھ اس نے تجھے تیرا نام لیا ہے، یہ تو بت کو پکار رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں ساری رات بتوں کو پکارتا رہا، بتوں نے جواب نہ دیا، چاہے غلطی سے مجھے اللہ کو پکارا ہے، اگر میں بھی رب اس کو جواب نہ دوں پھر اللہ اور بتوں کے اندر کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ تو عطا کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمارے مانگنے کے اندر دیر ہے، رب العالمین کے عطا کرنے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے۔ نماز جگانا نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بندہ گھروں کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وعید بھی ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی طوفان ہے، بارش ہے، گھر کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وگرنہ پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مخصوص جگہ تھی، اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر وہ لوگ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے زمین کو وسیع کر دیا، زمین کی جس جگہ پر بھی انسان سجدہ کرتا ہے اس کے سجدے کو قبول کیا جاتا ہے۔ پہلی امت کے لوگ کیا تھے؟ ان کے کپڑے کے ساتھ ناپاکی لگ جاتی، ناپاکی کو لگی ہوئی جگہ پر اس جگہ کو کاٹنا پڑتا تھا۔ امت محمدیہ پر اللہ نے احسان کیا، جسم پر ناپاکی لگی اس کو 3 مرتبہ دھو لو، صاف کر لو، کپڑا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے امت محمدیہ پر بڑے انعامات کیے۔ گھر کے اندر نماز پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے 25-27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو بندہ مسجد اقصیٰ کے اندر 1 نماز پڑھتا ہے 25,000 نمازوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ جو مسجد نبوی کے اندر 1 نماز پڑھتا ہے میرا رب 50,000 نمازوں کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بیت اللہ کے اندر 1 نماز ادا کرتا ہے میرا رب 1,00,000 نمازوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے نظریات بدل گئے، ہمارے طریقے بدل گئے، کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آئے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا داری کے اندر رہتے ہوئے، ہم دنیا کے اندر عارضی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم تفرقوں کے اندر پڑ گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایسی باتیں کرنے والوں کی وجہ سے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ گناہ گار ہے۔ جو امت کے اندر فساد اور لڑائی کا ذریعہ بنتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر جو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے گھروں کے اندر آتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کو اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اور جس محلہ کے اندر مسجد ہوتی ہے تمام محلے والوں کا اس پر حق ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آئیں، مسجد کے اندر آ کر
पंजगाना नमाज़ों को अदा करें, मस्जिद की सफाई करें और मस्जिद की ज़रूरियात को पूरा करें। ये अल्लाह के घर हैं। जब इन घरों को हम आबाद करेंगे, इनके साथ मोहब्बत करेंगे, इनके अंदर नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, कल क़यामत वाले दिन ये जितनी भी मसाजिद के टुकड़े हैं इनको उठाया जाएगा, बैतुल्लाह के अंदर रख दिया जाएगा और बैतुल्लाह को जन्नत के अंदर रख दिया जाएगा। तो उस वक़्त मसाजिद कहेंगी, अल्लाह फरमाएंगे कि मसाजिद के टुकड़े तो तुमको मैंने जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, तमाम मसाजिद के टुकड़ों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। कल क़यामत वाले दिन मसाजिद कहेंगे कि नहीं नहीं अल्लाह, नहीं, वो लोग जो मेरे अंदर आया करते थे, जो मेरी सफाई किया करते थे, जो मेरी देखभाल किया करते थे, जो मेरे से मोहब्बत किया करते थे, जिन्होंने घर में जब बनाया था, तेरे घर को बनाया था, मैं सिफारिश करती हूँ उनको भी हमारे साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह तबारक व तआला मसाजिद के साथ ही आबाद करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, दिन और रात के अंदर मसाजिद के अंदर आने जाने वालों को साथ ही जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। यह कोई मामूली काम नहीं है। यह मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करना है। यह हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। नमाज है, अगर नमाज अच्छी निकल आई बाकी अमल भी अच्छे निकल आएंगे। अगर हमारी नमाज अच्छी ना निकली बाकी हमारे अमल भी फिर अच्छे नहीं निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पंजगाना नमाज एहतमाम के साथ, जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मसरूफियत होती है, एक आध नमाज रह जाती है, उसकी वजह से बाकी भी नहीं पढ़ता, उलमा यहाँ फरमाते हैं जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ते रहो, अनकरीब वो वक़्त आएगा अल्लाह पंजगाना नमाज़ों का तुम्हें आदी बना देगा, पंजगाना नमाज एहतमाम के साथ पढ़ने वाला बना देगा। और दीन इस्लाम के लिए, आखिरत के लिए जो कुछ भी होता है, जिस दर्जे में भी होता है, हमारे पास वक़्त बहुत कम है, हमारी ज़िंदगी बहुत कम है, किसी को कोई पता नहीं किस वक़्त सांस बंद हो जाए और मौत आ जाए, मौत के बाद ये वक़्त ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कभी ये वक़्त नहीं आएगा। अगर दुनिया के अंदर रहते हुए हमने अमाले हसना करके हम चले गए, हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए हमें जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। इसलिए इस चीज़ का एहतमाम ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबको जो है आदी बनाना चाहिए, मसाजिद के अंदर लेकर आना चाहिए। औरतों को तरगीब देनी चाहिए कि घर के अंदर नमाज़ों का एहतमाम करो। एक बंदा मस्जिद के अंदर पंजगाना नमाज अदा करता है, उसके बाकी सारे घर वाले नमाज नहीं पढ़ते, तो उसका हक है, सरबराह है घर का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से हर एक निगहबान है और क़यामत वाले दिन हर एक से उसकी रइयत के मतलब पूछा जाएगा। हमें जो है पंजाब का नहीं पूछा जाएगा, सिंध का नहीं पूछा जाएगा, किसी मुल्क का नहीं पूछा जाएगा, किसी जो है डिपार्टमेंट का नहीं पूछा जाएगा। जो बंदा जिस जगह पर सरपरस्त है, ज़िम्मेदार है, कल क़यामत वाले दिन उससे पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा बीवी बच्चे थे, उनको दीन की तरगीब क्यों नहीं दी, अपने बच्चों की शरी तरबियत क्यों नहीं की और अपने बच्चों को दीनदार क्यों नहीं बनाया, ये हमसे पूछा जाएगा। लिहाजा जहाँ जहाँ तक हमारी रसाई है हर बंदा कोशिश करे। बाकी मेरा रब हिदायत देने वाला, तौफीक देने वाला। और जब नमाज पढ़ लो, अच्छा अमल कर लो। जिस तरह तबलीगी जमात वाले जो है गश्त करने के बाद कहते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। किस वजह से भाई इस्तग़फ़ार पढ़े कि अजीम काम है, अंबिया वाला काम है, बड़ी अज़मत वाला काम है। अज़मत वाला काम करने के बाद भी इस्तग़फ़ार ही पढ़ना है, अच्छा अमल करने के बाद भी इस्तग़फ़ार ही पढ़ना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।